کہ تیرے ہر جھوٹے وعدے پر مکاری پر لعنت ہے، مکاری پر لعنت ہے، دیش میں پھیلی نفرت والی بیماری پر لعنت ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا IR مشاہرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اپنے ضمیر سے پوچھو۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں خزانہ نہیں لٹنے دوں گا، میں پڑھتا ہوں مصرے کہ تیرے ہر جھوٹے وعدے پر مکاری پر لعنت ہے، مکاری پر لعنت ہے، دیش میں پھیلی نفرت والی بیماری پر لعنت ہے، بیماری پر لعنت ہے، دیش لوٹ کر روز لٹیرے ناک کے نیچے بھاگ رہے، دیش لوٹ کر روز لٹیرے ناک کے نیچے بھاگ رہے، چوکیدار تیری ایسی چوکیداری پر لعنت ہے، تیرے ہر جھوٹے وعدے پر مکاری پر لعنت ہے، مکاری پر لعنت ہے، دیش لوٹ کر روز لٹیرے ناک کے نیچے بھاگ رہے، چوکیدار تیری ایسی چوکیداری پر لعنت ہے، تیرے ہر۔ پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا۔ صاحب کی بات ہو رہی جو نوٹ لٹا رہے تھے وہ تو سچ میں ایک دم سنجیدہ ہو کے بیٹھ گئے، اسے بیٹھ گئے ہیں جیسے آج کل اڈوانی جی چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں۔ ساری نوٹ انہوں نے واپس اپنی جیب میں رکھ لی ہے، لیکن ان کی محبت کو سلام۔ میں پڑھتا ہوں صاحب۔ مکاری پر لعنت ہے چوکیدار تیری ایسی چوکیداری پر لعنت ہے، مکاری پر لعنت ہے، یاد کرو ایک جملے پر قربان گئی ہے یہ جنتا، روٹھی تو فرضی آنسو پر مان گئی ہے یہ جنتا، یاد کرو ایک جملے پر قربان گئی ہے یہ جنتا، روٹھی تو فرضی آنسو پر مان گئی ہے یہ جنتا، للت سے لے کر نیرو مودی تک پر خاموشی ہی ہے، کس کے اچھے دن آئے اب جان گئی ہے یہ جنتا، پونجی پتیوں سے سنیاسی کی یاری پر لعنت ہے، چوکیدار تیری ایسی چوکیداری پر لعنت ہے، تیرے ہر جھوٹے وعدے پر مکاری پر لعنت ہے، مکاری پر لعنت ہے۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب۔ یاد کرو وہ جملہ نہ کھانے دوں گا نہ کھاؤں گا، وطن پہ آ جائے گی تو لاہور تلک چڑھ جاؤں گا۔ 578 آفیشیل ریکارڈ ہے، پچھلے پونے 4 سال میں 578 سینک مارے گئے ہیں بے گناہ۔ پورے UPA کے 10 سال کے شاسن کال میں اتنے سینک نہیں مارے گئے جتنے پچھلے پونے 4 سال میں مارے گئے۔ یاد کرو وہ جملہ نہ کھانے دوں گا نہ کھاؤں گا، وطن پہ آ جائے گی تو لاہور تلک چڑھ جاؤں گا، بیچارہ سینک سرحد پر روز ہی مارا جاتا ہے، تم کہتے تھے ایک سر کے بدلے میں 10 لے آؤں گا،
56 इंची। जरा सुन के बताना जबलपुर वालों कि 56 इंची वाली ऐसी दम। आइए दोस्तों, दवाए दिल किताब से कुछ बेहतरीन बातें सुनते हैं। मकाम खौफ हर मखलूक को हासिल। हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो आपने 7वें आसमान को देखा कि कुछ फरिश्ते हैं जिनके कद बहुत बड़े हैं और वो सजदे के आलम में हैं और उनके जिस्म कांप रहे हैं और उनके जिस्म के कांपने की वजह से एक अजीब सी आवाज महसूस हो रही है। तो पूछा, जिब्रील ये कैसी आवाज है? फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरिश्ते सजदे की हालत में पैदा हुए, हमेशा इसी हालत में अल्लाह पाक की हमद करते रहेंगे, तस्बीह पढ़ते रहेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जलालत शान का इन पर इतना असर है कि ये खौफ की वजह से कांप रहे हैं और उनके कांपने की वजह से ये आवाज आपको सुनाई दे रही है। अंदाजा कीजिए अल्लाह पाक की जलालत का क्या आलम होगा। नबी अलैहिस्सलाम अर्श के पास जाने लगे तो आपने अर्श की आवाज सुनी। पूछा, जिब्रील ये कैसी आवाज है? अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अर्श की आवाज है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत की वजह से इसमें से आ रही है। जैसे कोई कुर्सी होती है जिस पर कोई मजबूत बंदा बैठ जाए, उसमें से जैसी आवाज निकलती है ऐसी आवाज अर्श में से आ रही थी। तो जब फरिश्तों का ये आलम, अर्श का ये आलम, तो अजीज दोस्तों हम भी तो जरा सोचे कि हमने तो इरादे के साथ खताएं की हैं, ऐसा ना हो कहीं पकड़ ना आ जाए। इसलिए डरने की बात है और माफी मांगने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े गयूर हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, औलाद आदम में सबसे ज्यादा गयूर हूँ, अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गयूर हैं। हम गुनाह जब करते हैं ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान ही है, अगर मुआखिज फरमाए तो हमारा क्या हाल बने। दोस्तों, अगर गुनाहों में से बू आ रही होती तो शायद आज हमारे पास लोगों का बैठना मुश्किल हो जाता, हमारे जिस्म से इतनी बदबू निकल रही होती। अल्लाह ताला बड़े गयूर हैं। किताब में एक वाकया लिखा है जो मिस्र का है कि एक आदमी अजान देने के लिए मीनारे पर चढ़ा। इधर उधर जो देखा तो हमसाया की छत पर उसकी जवानुल उम्र लड़की पर नजर पड़ी। बस दिल पर असर हो गया, नीचे उतरा, जाकर हमसाया से बात की कि इसका मेरे साथ निकाह कर दो। वो गैर मुस्लिम थे। उन्होंने कहा, अच्छा आओ हमारे घर बैठकर बात करते हैं। अब सीढ़ियां चढ़ने लगा, पाँव जो फिसला, गर्दन के बल गिरा और वहीं पर मौत आ गई। परवरदिगार ऐसे भी कर देता है कि जब अजान देने मीनारे पर चढ़े तो मुसलमान थे, जब नीचे उतरे तो सब नेमतें छिन चुकी थी। हमने तो इरादों से गुनाह किए, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है कि अल्लाह पाक ने ढील दी, हमारे ऊपर रहमत के पर्दे डाल दिए, हमें छुपा लिया, लोगों की जबानों से फिर तारीफें करवा दी। इसलिए किसी ने कहा, ए दोस्त, जिसने तेरी तारीफ की उसने दर हकीकत तेरे परवरदिगार की सत्तारी की कि जिस परवरदिगार ने छुपा रखा है, अगर वो ना छुपाता तो लोग तो थूकना भी पसंद ना करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये कितनी बड़ी रहमत है, वो कितना बड़ा हलीम और कितना बड़ा है। तो इंसान और जिन के सिवा हर मखलूक को मकाम में खौफ हासिल है, इसलिए कोई मखलूक अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकती। हर चीज उस काम में लगी हुई है, काम में अल्लाह ने लगा दिया है। शजर व हजर ये भी अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो भी कोई चीज है उसकी हम्द बयान करती है, मगर तुम उसकी तस्बीह को समझते नहीं हो। हर चीज को पता है उसकी ड्यूटी क्या है। कुरान पाक में फरमाया, कुल्लु कद अलिम सलातहु व तस्बीहा, हर चीज को अपनी नमाज का पता है और सारी मखलूक अपने फर्ज को अंजाम दे रही है। एक इंसान और एक जिन सिर्फ ये दो हैं जो मनमानियां कर लेते हैं, नाफरमानियां करते हैं। इसलिए फरमाया, सनफ़रुगु लकुम अय्युहस सक़लान, नाफरमान जिन और नाफरमान इंसान, उनको अल्लाह ने फरमाया, तुम मेरी जमीन पर बोझ बने हुए हो। फरमाया, ओ मेरी जमीन के बोझ हो, हम अपने आप को अनकरीब फारिग कर रहे हैं। हम तुम्हें मजा चखाएंगे जैसे माँ धमकाती है बच्चे को कि अभी आती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि वो आ नहीं सकती, धमकाना मकसूद होता है कि ये बाज आ जाए। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि हम अपने आप को तुम्हारे लिए फारिग करते हैं
ओ मेरी जमीन के बोझ हो, हम तो जमीन पर भी बोझ बने हुए हैं, कितने गुनाह किए हैं। हमने जिनसे चंद किलो का वजन सर पर नहीं उठाया जाता, उन्होंने भी टनों के हिसाब से गुनाहों का बोझ सर के ऊपर लादा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोस्तों वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।